Okay, so after lab setup, you can start your practice. So let me start. Chapter Ethical Hacking Tools and Technique. Overview of popular ethical hacking tool. So there are different popular ethical hacking tool, which I am going to elaborate and like show you demo. So uh, ethical hacker are hacking field तब तक इलीगल नहीं है जब तक कि उसको मिसयूज ना किया जाए, जब तक किसी के लिए उसका मिसयूज करके उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ओके, तो सिंपल हमें क्या करना होता है कि जो भी चीजें आप ये स्टार्ट कर रहे हो, जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड आफ्टर दिस सेशन आई शेयर अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म जो कि आपको उधर प्रॉपर साइन करना है और प्रॉपर फिर उसको अपलोड करना है। ओके, इज मैंडेटरी फॉर दिस कोर्स। So network scanner. Okay. Now we are going to start from network scanner. There are different types of tools and technique for vulnerability analysis for target scanning. One is network scanner. In network scanner there is Nmap. Okay, Nmap. So Nmap is a tool and it is available with GUI and CLI. Either if you are free to do with command line practice, you can use CLI version of Nmap. And अगर आपको लगता है कि नहीं GUI is better for me, so you can go with GUI. But in security domain or in ethical hacking or cyber security or in Linux domain, always go with CLI because CLI is better than GUI in Linux ecosystem. Okay, and Kali Linux is a Linux flavor. That's why it is better to go with CLI version. Okay, there is no error. Easily you can operate your all command through command line interface. GUI is little bit tough as I feel, बाकी अपने अपने ऊपर है. So Nmap is a best tool to gather the information about any target. Okay, is a very powerful tool. Even then agencies, investigation agencies, cyber criminals, hacker attacker, yeah, agencies, engineers, security engineers, SOC team, NOC team will use this particular tool to gather the information about target. For example, if you have a target and if you want to collect some information related operating system, related open ports, related open services. Okay, if you want to check that is there firewall enable on a specific target or not, if you want to check IDS IPS system, what is the IP network, what about subnet, what about running services, okay, what about vulnerability. Okay, means everything you can get, you can access, you can gather the update about any target through Nmap. Okay, so Nmap is a powerful tool. In interviewer or company always ask that how many tools you have knowledge to practice or to secure our network. ओके, कौन से टूल पर आपको प्रैक्टिकल इतना नॉलेज है, क्या आप हमारी इंडस्ट्री के लिए कर सकते हो, कौन से ऐसे टूल पर आपको कमांड है, ये सारी चीजें हैं। तो टूल के बताने से आइडिया लग जाता है उसको कि हाँ, आपको इस लेवल की नॉलेज होगी। या आपने व्हाट्सएप हैकिंग तो नहीं सीखा है एथिकल हैकिंग के कोर्स में, ऐसा भी लोग सीखते हैं। मेरे पास इंक्वायरी आती है, सर टेल मी हाउ टू हैक व्हाट्सएप। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैकिंग। सर माय GF, माय BF, माय वाइफ, लाइक आई फील दैट ही इज आर सी इज चीटिंग विथ मी, ये वो बहुत सारी चीजें, ऐसा मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, नहीं काउंट कर सकते। तो लोगों को ये लगता है कि उस एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन ये होता है, ये नहीं होता है। बट यस, कंपनी के अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं जिसको आप एन मैप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, लेट मी शो दैट हाउ टू यूज एन मैप। एंड always remember, before using Kali Linux, you can just connect internet with your machine and use, before using any tool, it is important to update sudo space apt space update enter and your Kali Linux password.
It is very, very important. Without update and upgrade, it is not possible to use your Kali Linux machine properly because it does not work properly. ये अच्छे से काम नहीं करेगा अगर ये कमांड आपने एग्जीक्यूट नहीं किया. सो दिस इज द फर्स्ट कमांड ऑन कैली लिनक्स जो कि आपको इस्तेमाल करना है. क्लियर है सबको? या ये वाली फाइल यहाँ से यहाँ नहीं आएगी क्योंकि मैं सर्वर पर हूँ ना, डायरेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है. सो इन कैली लिनक्स आपको सबसे पहले यहाँ से क्या स्टार्ट करना है? sudo apt अपडेट. इसके थ्रू आप क्या करते हो? अपडेट योर मशीन रेपो फाइल. रेपो मीन्स रेपोजिटरी. Then next one is sudo apt upgrade. Upgrade your Linux machine with latest tool. Okay. Upgrade in new version. ठीक है. It is very, very important. So next thing, let me use sudo space apt upgrade. मैं आज काली लिनक्स को यूज करने की वीडियो आपको शेयर कर दूंगा. कह रहा है कि स्पेस नीडेड 2 GB अप्रोक्स एंड डाउनलोड साइज इज 266, सॉरी 2661 MB, अप्रोक्स 2661 MB. मीन्स 2.5 GB के आसपास ये डाउनलोड करेगा. बहुत बड़ा अपडेट आ गया. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं. इट इज मैंडेटरी. अपग्रेड मैंडेटरी नहीं है बट अपडेट मैंडेटरी है. अपग्रेड आप नहीं करो तो भी बेटर है, बट अपग्रेड आपको करना, अपडेट आपको करना मैंडेटरी है. क्योंकि अपडेट से आपकी लेटेस्ट रिपोजिटरी अपडेट हो जाती है, आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करते हैं. बट अपग्रेड कभी कभी अपग्रेड नहीं करना होता है क्योंकि अपग्रेड करने से हमारी प्रीवियस लैब का जो पैकेट या जो डेटाबेस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है. तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी सी लैब और बहुत सारे टूल्स या बहुत सारा डेटाबेस बना रखा है, बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च कर रखा है, सो ऑलवेज थिंक बिफोर अपग्रेड कि मेरा अपग्रेड करने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं हमारे मशीन के साथ होने वाला है. ओके. या कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो पता चले कि 6 साल पुरानी मशीन या 6 महीने पुरानी मशीन पर सैकड़ों प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है और पता चले अचानक अपग्रेड करने से मशीन ऑन नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गया या पुराना डेटाबेस हट गया है, कुछ ऐसे. सो अपग्रेड का मतलब होता है कि नई चीज इसमें मेंशन होगी तो पुराने में कुछ हटा दिया जाएगा, पुराने सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर दिया जाएगा. हो सकता है उसका डेटाबेस प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको, ये सारी चीजें. सो दीज आर दी लाइक एस्पेक्ट्स बिहाइंड अपग्रेडिंग अपडेटिंग योर मशीन. ओके. सो 2-2.5 GB था तो समय तो लगेगा, बट 40% ये हो चुका है तो 100% में 1 आध मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. ओके. सो लेट मी शो. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू यूज nmap. सो यू कैन जस्ट टाइप nmap and enter, or nmap space hyphen hyphen help. This is the simple command. Okay, this is the simple command जिसकी हेल्प से आप कंप्लीट एंड मैप का चीट कोड निकाल सकते हो. ओके. अब आपको थोड़ा सा हैवी काम करना पड़ेगा. आप डेली 2-4 घंटा पूरे अगले सेशन में आने से पहले 3-4 घंटे की प्रैक्टिस करके आएंगे, क्योंकि हर सेशन के बीच में पूरा एक हफ्ते का गैप है, 5 से 6 दिन का. डेली 1 घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप अगले सेशन में या हमारे साथ फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपका छूट जाएगा. ये ध्यान देना. तो जैसे मैंने लिखा एनमैप, ये कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, इसको आप साथ में डायरी वगैरह में या नोट्स में टेबल पर अपने बैठ कर अच्छे से पढ़ना और उसको नोट करते रहना. इट विल हेल्प यू. सो एनमैप स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प. नाउ यू कैन सी, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया अब देखो मेरे पास एनमैप का कंप्लीट डेटाबेस आ गया. ओके. इट इज शोइंग दैट इफ यू वांट टू स्कैन योर टारगेट, सो दिस इज द कमांड. ओके. अबाउट होस्ट डिस्कवरी, so these are the command. These are the commands for host discovery. Okay. And scan technique, so these are the commands. Okay. So these are the concept जहां से आप ये सारी चीजें देखते हो.
स्कैन टेक्निक, पोर्ट स्कैन करने के लिए ये पूरा कमांड सिंटेक्स दिया हुआ। तो जब हमारे सामने लिखा हुआ है और मुझे यही ट्राई करना है तो हमें क्यों नहीं आएगा? समझ रहे हो आप लोग? सर्विस वर्जन एंड डिटेक्शन, इफ यू वांट टू चेक अबाउट एनी सर्विस रिलेटेड टारगेट सो यू कैन टाइप SV. What is the syntax? Let me show. Like if you want to scan target services with version, so this is the simple task. Open Kali Linux with root privilege and type nmap, then space, and then hyphen s capital V as per option, and then target IP. For example, my target IP is 192.168.11.154. एंड यू कैन टाइप सिंपल दिस कमांड एज पर द सिनेरियो। यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, अब समझ में आया? पोर्ट के बारे में चेक करना है तो -P। ओके, आपको सिर्फ सर्विस चेक करना है -S। आपको UDP स्कैन करना है, आप UDP यहां पर मेंशन करो। TCP स्कैन करना है, TCP लिखो। सिंक एंड स्कैन दोनों करना है तो S और कैपिटल S लिखो। सब यहां पर देखो लिखा हुआ है। आइडिया लगा आप लोगों को हाउ टू यूज एन मैप? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? जी सर। सर उसके बाद अंतर दबाना है। हाँ, बस उसके बाद यू कैन प्रेस एंटर। लेट मी शो सम एग्जांपल। लाइक आई वांट टू स्कैन अ टारगेट, सो currently my target is test php dot web.com. Okay, so everyone can note down this website for practice. Okay, सभी लोग इस वेबसाइट को नोट कर लेना, test php dot web. This is the simple website, okay, where you can start security practice. इस वेबसाइट पर फ्री हो आप कोई भी काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इट इज फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिटी टेस्टिंग डेमो, या जो भी आप बोलो। क्लियर है? आप हमारी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट को ऐसे नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आप वेबसाइट पर जैसे ही कोई इलीगल करोगे, वेबसाइट उसको ट्रैक करके एडमिन को मेल कर देगा। मतलब एडमिन के मेल पर आ जाएगा कि इस IP से, इस लोकेशन से, इस यूजर नेम से, इस पर्टिकुलर डिटेल से आपके वेबसाइट पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लेने पर आपको, आप एज अ साइबर एक्ट में आ जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो आप किसी के रिप्यूटेशन को, किसी की प्रॉपर्टी को, डिजिटल प्रॉपर्टी को आप ऐसे नहीं टच कर सकते विदाउट परमिशन। ओके, सो ऑलवेज यूज लैब विथ इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लैब करनी है तो सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। बियॉन्ड ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस अगर जाकर आप कुछ करते हो अपनी कंपनी के अंदर, अपने घर पर, अपने पड़ोसी से, कहीं पर भी, सो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, मैं उसमें कोई हेल्प या किसी भी तरीके का वो नहीं करता, प्रमोट। So you can use this website for security testing. Okay, so I want to scan this website. This is the World Wide Web page. Okay, तो इसको कहीं से भी आप भी एक्सेस करो, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ। एंड आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द IP एड्रेस फॉर दिस वेबसाइट। इधर आई वांट टू चेक IP एड्रेस और आई कैन एक्सेस द वेबसाइट डायरेक्टली डोमेन नेम। तो मैंने यहाँ से testphp.worldweb.com एंड जस्ट मैंने टारगेट यहाँ पर दे दिया। देखो यही मैंने लिखा ना, मैंने टारगेट दे दिया। लेट मी ऐड सूडो। सूडो मैं क्यों लगा देता हूँ? क्योंकि मैं $साइन से लॉग इन हूँ। डॉलर का मतलब क्या होता है? मैं लोकल यूजर से लॉग इन हूँ। तो आप जब टर्मिनल को ओपन करना, यहाँ से रूट टर्मिनल ओपन कर लेना और अपने कैली लिनक्स का पासवर्ड कैली डाल देना। अब देखो यहाँ से जो मेरा टर्मिनल लॉन्च हुआ है वो कैसे लॉन्च हुआ है? हैश के साथ। तो जब भी हैश के साथ मैं काम करूंगा तो ये सूडो लिखने की जरूरत नहीं है। सूडो मैं लिख रहा हूं ताकि मैं रूट की परमिशन पर ये काम करना चाहता हूं। अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंस? क्लियर है सभी को? जी सर। कोई ऐसा जिसको यहाँ कुछ टफ लगा हो? नहीं? तो सूडो मत, सूडो लगाएंगे। आप यहाँ पर भी सूडो लगा दो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट रूट अगर हैश साइन है तो मतलब आप ऑलरेडी यहाँ से देख लेना, रूट से है तो सूडो नहीं लगाना है, रूट से नहीं है तो सूडो लगाना है हर हाल में।
nmap और टारगेट का मैंने एड्रेस लिखा। मैं पोर्ट और सर्विसेज कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। यू कैन यूज फिल्टर, हाइफन पी लगा दूंगा तो क्या एक्सेस होगा, पोर्ट। हाइफन यूडीपी लगाया तो यूडीपी स्कैन होगा, हाइफन एसवी तो सर्विस वर्जन होगा। बट मैं डायरेक्टली टारगेट देकर एंटर करता हूँ एनसी, ये स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया। एंड this particular tool collect lots of information about target, and it displayed all output here. Okay, and as per output we can exploit the like further task for the target machine. Okay, so it done approx 33%, 33 30। तो थोड़ा समय देंगे तो ये स्कैन करके दे देगा। सिंपल, दिस इज द प्लान, लेट मी शो। इसको चलने देते हैं। तो इस तरीके से हम nmap टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एंड यू कैन यूज एंग्री आईपी स्कैनर फॉर आईपी स्कैन इफ यू वांट टू स्कैन आईपी एड्रेस। सो यू कैन यूज एंग्री आईपी स्कैनर। इधर यू कैन चेंज, यू कैन ट्रैक एंग्री आईपी स्कैनर इन योर मशीन, रन आईपी स्कैन। और यहाँ पर कुछ अपडेट दिया हुआ है। तो अगर मान लिया कि कोई भी टूल यहाँ पर नहीं, देखो एंग्री आईपी स्कैनर विंडोज मशीन के लिए है। तो अगर हमारे पास कोई विंडोज मशीन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से विंडोज 10 एक मशीन है जो कि मेरा, मैं इसको एज अ टारगेट इस्तेमाल करूंगा आगे चल के। मैं इसको भी लाइव कर लेता हूँ, लेट मी शो हाउ यू कैन गेट एंग्री आईपी स्कैनर। देखो यहाँ पर आ गया, वेबसाइट को मैंने टेस्ट किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेट मी अटैच दिस रिजल्ट। देखो इधर, तो यहाँ पर हुआ क्या, जस्ट आप मैच करो। तो आपने कमांड ये एग्जीक्यूट किया, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिल जाता है कि देर इज ओपन पोर्ट एंड सर्विसेज। क्लियर है? ये मैं आपके इस लैब मैनुअल में ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी। ये पूरा मटेरियल अभी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, एनमैप का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही रहेगा। यही मटेरियल में मैं सारी चीजें आपका डे बाय डे ऐड करता जाऊंगा और इसी को मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है सबको? तो ये चीज मैंने टेस्ट कर लिया। एंड मुझे यहाँ पर मिला कि इस पर 80 नंबर पोर्ट ओपन है। पता चला हाउ एन मैप स्कैन दी टारगेट। नाउ क्लियर संजय? जी सर। सर इसके ओके, बाद सर क्या करते हैं? उसके मुझे बाद उस आगे पर अटैक करते हैं। ये पोर्ट खाली है, जैसे आप किसी के घर में कोई चोर घुसना चाहता है और वो देख ले कि भाई यहाँ इसका खिड़की दरवाजा इधर से खुला है, तो बस खुला है तो फिर उधर से जब देखेगा कोई है नहीं, या किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के घुस जाएगा। हैकर अटैकर ऑलवेज वांट टू हैक द डेटा फॉर समवन, फॉर कंपनी। ओके, और वो हमेशा पैसे की डिमांड करता है। बट एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हम लोग क्यों ऐसा करेंगे? हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ के सर्वर के अंदर ये चीज़ की कमी तो नहीं है। ये सब टेस्ट करते रहना अटैक कर करके, एंड देन डेफिनेटली वी कैन टेल दी डिफरेंट डिफरेंट टीम दैट दीज आर दी वल्नरेबिलिटी इन सर्वर, प्लीज फिक्स दीज वल्नरेबिलिटी। ओके, समझ रहे हो ना आप? हाँ जी सर। आगे आइडिया लगेगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है अभी। तो ये मेरे पास एक विंडोज मशीन है, और जस्ट मैं इस विंडोज मशीन पर कुछ टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे एंग्री आईपी स्कैनर। ओके, दीज आर दी टूल। आपको इस सब टूल्स को आज, देखो यहाँ पर है, ये फ्री है, इसको डाउनलोड कर लेना। और विंडोज़ के लिए है तो मैं विंडोज़ की इंस्टॉलर फाइल यहाँ से, आई थिंक ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट आप यहाँ से विंडोज़ इंस्टॉलर क्लिक कर लो, एंड फायरफॉक्स में डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो सभी लर्नर ध्यान देना, आप लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लेना कि आपको क्या डाउनलोड करना है। तो लिख लेना विंडोज़, और विंडोज़ पर डाउनलोड मुझे करना है एंग्री आईपी स्कैनर। ओके, मेरा एंग्री आईपी स्कैनर आई थिंक यहाँ से डाउनलोड हो गया, नहीं हुआ अभी। अच्छा, ओके, इंस्टॉलर फाइल दोबारा से क्लिक करते हैं। यस, डाउनलोडिंग। तो 17.6 MB का फाइल है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर लेना। और मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। तो कुछ विंडोज़ पर भी आपको टूल मिल जाते हैं, इसको आपको डाउनलोड करके रन कर लेना है, नेक्स्ट करना है, एंड फाइनली डन। फिनिश कर दो, लॉन्च कर दो। यहाँ से आ जाओ और एंग्री आईपी स्कैनर को आप ओपन करो। तो आईपी स्कैनर मीन्स यू कैन स्कैन आईपी एड्रेस। ओके, मीन्स यू कैन स्कैन अ नेटवर्क। तो मान लिया कि मुझे एक नेटवर्क रेंज है, स्कैन करना है, तो उसकी आईपी मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि 0 से लेकर इस रेंज के 255 या 56 कंप्यूटर 256 पीसी को यहाँ से स्कैन करो। ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। क्लियर है सबको? सिंपल, यू कैन पुट द एड्रेस ऑफ टारगेट एंड स्टार्ट स्कैन। ओके, इट विल स्कैन अबाउट टारगेट एंड शो द रिजल्ट, एंड एज पर रिजल्ट यू कैन प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? जी सर। तो ये एंग्री आईपी स्कैनर है। So, what is the process to install the Angry IP scanner in Kali Linux? So, first of all, let me check that the repository file of Angry are, ये देखो हमारा कुछ यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ, फेल हो गया। आई डोंट नो ये फेल क्यों हुआ, हम लोगों ने प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया। तो ये कहाँ से फेल हुआ था, 95% के बाद फेल हुआ था। तो ये फेल क्यों हो गया था, मैं इसको होने देता हूँ। 97.8 हो तो गया कंप्लीट। तो कोई भी पैकेट जो है वो अगर आप अपने काली लिनक्स पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कभी इजीली हो जाता है डायरेक्टली, कभी उसकी रेपोजिटरी नहीं होती है तो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। इसलिए मैं काली लिनक्स का वीडियो शेयर करूंगा, उसको पूरा पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको मुझे लाइनेक्स समझाना ना पड़े प्लीज़। बाकी तो जो काम करते हुए समझाना है वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, बट लाइनेक्स चलाना आप सीख लेना। परमिशन वगैरह चेक करना, ये सब 2 घंटे का जो सेशन है, आई शेयर। तो देखो मेरा इंस्टॉलेशन ये हो रहा है। और जब एक इंस्टॉलेशन हो रहा है तो मल्टीटास्क मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मल्टीटास्किंग का एक प्रोसेस होता है लिनक्स के अंदर जो कि अ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो ये पूरा 2-2.5 GB की फाइल अपग्रेड हो रहा है। तो अभी मेरे लिनक्स के अंदर मैं देखता हूँ क्या चेंजेस मिलता है, वॉलपेपर वगैरह बढ़िया बढ़िया आ जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल बिल्कुल बेसिक सा है, पुरानी मशीन है ये। तो मेरा नया मशीन डाउनलोड नहीं करना पड़ा मुझे, डायरेक्टली मैंने अपग्रेड कर दिया और मेरा पूरा कुछ सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया, नया हो गया, राइट। तो सर, कोई मेरा सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। सर, जैसे आपने बताया कि एंग्री आईपी स्कैनर को यूज करना है, तो क्या होता है कि हम लोग नेटवर्क में स्कैन करने के लिए अदर से सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब आप क्या जैसे कि यूज़ हम लोग करते, मेरी बात हमारा सुनो, जैसे जी जी, आप क्या यूज़ करते हो ये। एडवांस आईपी स्कैनर। हाँ, बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप क्या यूज़ करते हो वो आप जानते हो कि आप ये यूज़ कर रहे हो, उसमें ये चीज़ हमें मिलती है, राइट। ये भी टूल मैंने दे दिया, ये सब जैसे अगर मैं पूछूं कि सैमसंग के फ़ोन में, ओप्पो के फ़ोन में, वीवो के फ़ोन में आपको क्या डिफरेंस दिखता है, ब्रांड का डिफरेंस है कुछ, डिस्प्ले वगैरह का डिफरेंस आ जाता है, कुछ यूआई का डिफरेंस आता है, बाकी है सेम चीज़ है ना, सेम टास्क सारी चीज़ें, है ना। जस्ट यूआई वगैरह अपना अपना है।
ओके तो सर, थैंक यू सर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टूल्स ओके फॉर सिंपल आर फॉर सेम टास्क। तो आप देख लो जो बेटर लगे, जिसमें आपको लगता है कि यार दिस इज द बेटर टूल फॉर पर्टिकुलर टास्क, तो आप उसको टाइम टू टाइम यूज करो। एंड अपने टास्क और स्किल को आप स्विच भी करते रहो, क्योंकि एक टूल पर डिपेंड होना सही नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर कोई टूल नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं सारा आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल के समय जो जरूरत पड़ी मैं वैसा यूज करके मुझे रिजल्ट चाहिए बस। राइट? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर सर। तो 10 टूल है, तो मैं 10 टूल में एज अ लर्नर टाइम देना होता है सीखने के लिए। मैं इसमें कई साल से लगा हूँ, या बहुत सारी चीजें मैं इसमें देखता हूँ, तो आइडिया लग जाता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए। तो जो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा या जो कुछ नया होगा हम चेक करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इज दैट क्लियर? और हमें रिजल्ट निकालना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद हम लोग बहुत जल्दीबाजी में नहीं कुछ करते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, पेशेंस के साथ सीखते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। नहीं सर, अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर बोर होंगे तो फिर देखो, मेरे पास सारा कॉन्सेप्ट याद है। मैं चाहूँ तो एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर दूं, मुझे कोई वो नहीं, बट इत्मीनान से पढ़िए बिल्कुल सब कुछ। हमने 30 घंटे का कोर्स बोला है, जरूरी नहीं 30 घंटे में, हम लोग 40 घंटे में खत्म करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, 50 घंटे में पढ़ेंगे। राइट? सर ये अभी डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब सॉफ्टवेयर ये काली लिनक्स के अंदर में आता है क्या? हाँ हाँ। ये एनमा, एमओए, सब उसके लिए काम करते हैं, ऐसा है क्या सर? कौन सा सॉफ्टवेयर? ये एनमैप हाँ, और एनमैप। इस एनमैप आपका विंडोज़ के लिए भी है, वो भी अगर विंडोज़ पर आप रन करना चाहते हो तो जी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडोज़ में वो पहले से नहीं होता है ना, जी एनमैप डाउनलोड। जी अब बस कुछ नहीं करना है, इंटरनेट इतना चलाने हमें आना चाहिए। एनमैप और डन जी किया, डाउनलोड कर जी लो यहाँ से, देखो है ना। जी जी। तो ये जेनमैप नाम से होगा हाँ जी सर। विंडोज़ के लिए। यहाँ से जी देखो, जी एनमैप, ये जस्ट आप क्लिक करो, इसको इंस्टॉल कर दो और ये आपका काम करेगा। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, देखो अप्रोक्स 32 MB का सॉफ्टवेयर है, हो गया इजली। ओके। जी बट जी सर। काली लिनक्स के साथ बेटर, मान लिया कि आपको कोई अटैक परफॉर्म करना है तो विंडोज से तो उतना बढ़िया से कर नहीं पाओगे। तो आप जी यहाँ से टारगेट के बारे में स्कैन करो और वहां जाके टारगेट परफॉर्म करो, तो फिर आप खुद कहोगे कि यार एक जगह मेरे को चाहिए सब, क्यों अलग अलग हाँ मैं जाऊं, यहाँ स्कैन करूं वहां से वो, यहाँ की कोई फाइल वहां लेकर जानी है, फिर दिक्कत है ना। हाँ जी सर, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ से देखो, मैं इसको भी इंस्टॉल कर दिया। तो जो लाइनेक्स के लिए है वो विंडोज़ के लिए भी है, बट विंडोज़ में हमें वन बाय वन डाउनलोड इंस्टॉल सब करना पड़ता है। देखो हो गया इजली। हाँ जी सर। डन, इंस्टॉल नाउ। सर इसके लिए एसएसडी जरूरी है क्या? एचडीडी मतलब जो एचडी ड्राइव है अपना नॉर्मल, वो वन। नॉर्मल, नॉर्मल वाले पर भी चलेगा, बट आई थिंक नहीं होता है कि आप एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए यू कैन यूज एसएसडी, राइट? आप एचडीडी पर करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट है ना कि जैसे कोई हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी लैब है ना, हाँ या हाँ जी। कोई अटैक आपने परफॉर्म करना सीखा या प्रैक्टिस किया, जैसे डीडॉस अटैक करना था, या डिनायल सर्विस अटैक, या फिर कोई फ्लड बेस अटैक करना था, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो एसएसडी या कुछ ऐसा है वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है। राइट? या 2 मशीनें 3 मशीनें एक साथ लॉन्च करके मुझे उसके अंदर सिक्योरिटी टेस्ट करना है, हैकिंग परफॉर्म करना है, तो फिर 2 मशीनें 3 मशीनें एसएसडी पर अच्छे से चलती हैं उसी मशीन में। बट एचडीडी में क्या होता है ना, लगभग में 8 to 10 टाइम स्पीड स्लो होता है एसएसडी के कंपेयर करें तो।
मतलब कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो अगर हमारे लैपटॉप में एसएसडी है तो, और एचडीडी से मैं सारा काम करता हूँ, और वही सारा काम मैं एसएसडी से करता हूँ, तो 10 टाइम फास्ट रिजल्ट मुझे मिलेगा, हम्म, है ना। तो हम्म, अगर इस कंपेरिजन, जैसे मान लिया कोई काम एचडीडी में 2 मिनट में हो रहा है तो एसएसडी में वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में हो जाएगा, राइट, या हम्म, उससे भी कम हो जाएगा। एसएसडी पर भी डिपेंड है कि आपने कौन सी जनरेशन का लिया है। हार्डवेयर तो लाइक टाइम को तो मैनेज करेगा ही करेगा, आप सबको आइडिया है ना। जितना बेटर हार्डवेयर हमारा होगा उतना बढ़िया से मेरा रिजल्ट और आउटपुट देखने को मिलेगा, उतना जल्दी देखने को मिलेगा, राइट। और सर ये विंडोज, जैसे भी मेरे सिस्टम पे विंडोज 11 है इंस्टॉल, तो फिर भी वो विंडोज 10 एंटरप्राइज वर्जन वो डाउनलोड करना ही है ना? हाँ कर लो, क्योंकि देखो आप अपने अगर मेन कंप्यूटर पर सिक्योरिटी टेस्ट करोगे तो हो सकता है उसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो, मेल लॉगिन हो, है ना, हाँ। व्हाट्सअप चलता हो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा हो, राइट। और राइट। सिक्योरिटी टेस्ट के समय आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ओके ओके सर। दैट्स वाई वी नीड आइसोलेटेड लैब। तो ये हमारा क्या एक, मतलब, मतलब इसी लैपटॉप में दो तीन अलग अलग लैब ये हाँ चलेंगे, अलग अलग ओएस? ओके। हाँ, अब मान लिया कि इसमें मेरा मेरा कोई इशू आया इस विंडोज 10 में, मैंने डिलीट कर दिया मशीन को, यहाँ पर मैं गया राइट क्लिक किया, मैनेज में गया, यहाँ से डिलीट ऑल कर दिया बस, और दोबारा इंस्टॉल कर लिया। मेन कंप्यूटर पर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। हम्म। हाँ, सिक्योरिटी टेस्ट में हम अपने मेन कंप्यूटर पर क्यों करें, राइट। हाँ बराबर, ओके। तो ये है, तो यूज आइसोलेटेड लैब। थैंक यू। ओके, तो यहाँ से मेरा ये बस 99% है, हो चुका है। अभी किसी का इमेज स्क्रीनशॉट आया है ऐश्वर्या आपका, तो डोंट वरी, अभी मैं आपका इस कंप्यूटर शेयर करवा लेता हूँ और देखता हूँ किसी को लैब सेटअप में दिक्कत हो रही है तो इस अपना शेयर कर देना, अभी मैं अलाउ कर देता हूँ और उसको मैं चेक करके फिक्स करवा दूंगा। लैब सेटअप आज सबका, अगर कोई कर रहा था नहीं हो रहा है तो अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करना अभी, आफ्टर एंड ऑफ सेशन हम लोग उसको सर फिक्स कर जैसे देंगे। वीएम प्लेयर की आपने जो लिंक दी थी वो डाउनलोड किया है मैंने, तो अभी वो रन कर लूँ ना हाँ, साइड बाय उसको साइड? रन कर लो आप, लेकिन रिबूट होगा जब आप फाइनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वो तो 2 मिनट का टास्क है अभी। बाद में कर। हाँ, अभी बाद में कर लेना आप, जब तक एक लोगों का लैब सॉल्व होगा फिर तुरंत आप अपना लैब सेटअप कर लेना। काली लिनक्स भी डाउनलोड में लगा दो आप, हाँ हाँ। डाउनलोड में सब लोग लगा दो, और अभी आफ्टर मतलब सेशन थोड़ा समय देंगे हम लोग एक्स्ट्रा, और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक दो लोगों का मैं दिखाऊंगा, बाकी सब लोग उसी पैटर्न पर अपना सब कर लेंगे, है ना। ओके डन। बातों बातों में मैं भूल गया, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। सूडो एपीटी ऑटो रिमूव कर देता हूँ, इससे क्या होगा ना, कुछ इधर उधर का बहुत सारा वो इकट्ठा हो जाता है, नहीं मतलब अनवांटेड फाइल्स ये सब तो मेंटेन हो गया। सूडो एपीटी अपडेट, रिपोजिटरी अपडेट कर दिया। अब मेरा लिनक्स मशीन बिल्कुल अपडेटेड और इसके साथ कंप्लीट हो गया, देखो ब्राउजर और ये सब बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, मीन्स नया ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं थोड़ा सा वॉलपेपर क्लीन रखता हूँ, ये मेरा हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू यूज और हाउ टू इंस्टॉल एंग्री आईपी स्कैनर। अगर क्या हमारे आईपी स्कैनर हमारे पर्टिकुलर काली लिनक्स के अंदर अवेलेबल है तो एपीटी इंस्टॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सिंपल कमांड। ओके, मैं आपके लैब मैनुअल में लिख देता हूँ। लाइक हाउ टू इंस्टॉल एनी ऐप इन Kali लिनक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हैश या $साइन पर sudo apt इंस्टॉल, और जो भी हमारा मान लिया nmap इंस्टॉल करना है, आपके काली लिनक्स में नहीं है तो nmap लिख दिया, एंटर कर दिया, आपका बस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर nmap लिख के एंटर कर दूं, पासवर्ड मांगता है तो काली दे दूं, एंटर, कह रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल्ड है। क्लियर है। एंग्री आईपी स्कैनर मुझे चाहिए था तो मैं ANGR लिखकर टैब की प्रेस करता हूँ, एंग्री डी समथिंग कुछ करके, इतना सारा है। तो एंग्री
आईपी स्कैनर विंडोज मशीन के लिए है। मैं यहाँ से आईपी चेक कर लेता हूँ, आईपी से रिलेटेड कुछ है। nmap ही इसके अंदर बेटर है, तो फिर हम इसके अंदर और कुछ नहीं इंस्टॉल करेंगे। एंग्री आईपी स्कैनर यू कैन यूज ऑन विंडोज मशीन, एंड nmap आप यूज कर सकते हो नेटवर्क स्कैन और इन सारी चीज़ों के लिए अपने इधर के लिए। क्लियर है सबको? जेनमैप आप यहाँ से यूज कर सकते हो, आईपी स्कैन और सारी चीज़ें आपको ये भी प्रोवाइड कर देगा। जेनमैप ग्राफिकल के लिए है, जो कि अभी विंडोज़ पर मैंने जेनमैप आपको इंस्टॉल करके दिखाया। ये उधर काली लिनक्स में भी इसका ग्राफिकल वर्जन है। क्लियर है? दोनों तरफ है। आई थिंक आज मुझे बहुत हार्ड वर्क स्ट्रेस देकर बोलना पड़ रहा है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ताकि आपको इसके बाद मुझे ये ना बताना पड़े कि मैं ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड करना है, ये करना है। इजली मैं वो दिखाता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी टूल, apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, तो अपाचे 2। मुझे नहीं पता अपाचे 2, आपको मान लिया कि मुझे तो पता था, आपको नहीं पता अपाचे 2 करके है या अपाचे 3 करके है, तो आप यहाँ से लिखकर डबल टैब दबा दो। आपके सामने देखो इतने सारे पैकेज हैं इस नेम से। क्लियर है? तो इन स्टार्टिंग हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है, जैसे कि मुझे आई वॉन्ट टू रन, लाइक यू कैन चेक। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, है ना, आई एम जस्ट गिविंग आइडिया हाउ टू फाइंड टूल एंड हाउ टू नो द पर्पज ऑफ टूल एंड हाउ टू इंस्टॉल। तो हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्वर इन कैली लिनक्स, मैंने इसको ऐड किया, तो ये बता देगा कि आप कैली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करो अपाचे। क्लियर है सबको अब? यू कैन यूज एआई, इधर यू कैन यूज काली लिनक्स ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि apt इंस्टॉल अपाचे 2। अभी समझ में आया हाउ टू गेट हेल्प टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन इन काली लिनक्स? जी सर। ये सब ट्रिक है, मुझे डेली नहीं बताना पड़े, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो बस फाइनली यहाँ पर मैंने लिख दिया अपाचे 2, एंटर, एंड जस्ट मैं वाई लिखकर प्रेस करूंगा, एंटर, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। बट मुझे अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। अनवांटेड टूल नहीं भरना है मुझे अपने लिनक्स के अंदर। ओके, क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो एंग्री आईपी स्कैनर, नेट मैप, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी मतलब देखो, नेटवर्क स्कैन करने के लिए ये दो टूल हैं काली लिनक्स में। वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, वल्नरेबिलिटी मतलब कमियां, ओके, लाइक वीकनेस इन एनी मशीन। तो अगर वीकनेस या कोई कमी मुझे किसी सिस्टम के अंदर देखना है, सो वी कैन यूज नेसस। ओके, आई हैव बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ नेसस, आई शो। मेरे पास बहुत बड़ा इसका लैब है और मैं ये दिखाऊंगा। आप इसमें बहुत एडवांस अपने स्कैन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, आई विल टेल। So Nessus, how to use, how to find the vulnerability of your target machine, means it is a comprehensive vulnerability scanner that identify misconfiguration of machine server. Okay, यानी कि हमारे सर्वर में कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है, हमारे सर्वर में कोई मिस पैच अपडेट है, और मिसिंग पैचेज के बारे में, सिक्योरिटी फ्लॉ के बारे में। इवन देन इफ यू वांट टू फाइंड वीक पासवर्ड, so you can use Nessus. Okay, through Nessus you can find weak password in your Linux machine or in your web server, in your target machine. And even then, not about it, it display that this is, there is weakness. It will find the password for you from target. Okay, means through Nessus ये क्या करेगा, आपके टारगेट का पासवर्ड निकाल के दे देगा कि आप ऐसा करो, आपका पासवर्ड मतलब ऐसा करो, आपका जो टारगेट है वो हैक हो जाएगा। ये इतना लेवल का एडवांस टूल है। एंड नेसेस यू कैन इंस्टॉल, यू कैन यूज टू, you can use for free as a student, as a educational purpose. Okay, it is free, but there is community like professional version for commercial purpose. Okay, तो फ्री में इसको लिमिटेड टास्क के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट
कंपनी के लिए इस्तेमाल करना है तो गो विथ पेड वर्जन ओके ऑफ नेसेस। मैं इसका सेटअप कराऊंगा आगे चल के सारी चीजें। लेट मी शो दैट व्हाट अबाउट नेसेस। आई थिंक sudo space and system ctl status. ओके, नेसेस मेरे सिस्टम पर अभी इस पर आई थिंक नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं तो मैं अभी दिखा देता। ठीक, अभी नहीं है। नहीं तो मैं अभी दिखाता। इंस्टॉलेशन लैब सेटअप में उसका की वगैरह मंगाना पड़ता है ना, तो प्रॉपर उसका सेटअप जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे। बट यस, इन थ्योरी there is Nessus tool where you can find, or with the help of Nessus you can find different types of vulnerability in your machine. तो Nessus के बारे में अगर आइडिया आपको लेना है, लेट मी शो NESSUS, एंटर एंड रिस्टार्ट फायरफॉक्स। ये Nessus का डैशबोर्ड है। सो थ्रू दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या है ये एग्जैक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। आप टारगेट के बारे में डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज और ये सारी चीज़ें इस तरीके से चेक करते हो। ये बहुत एडवांस प्रोजेक्ट है, मैं इस पर बहुत इन डेप्थ आप लोगों को कराऊंगा। एक सेशन इस पर होगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ओके, सो ये भी हमें जानकारी मिलेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट टूल, एंड देन वी कैन यूज मेटा एक्सप्लॉइट टू हैक एनी टारगेट विद द हेल्प ऑफ मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। And then there are different types of wireless hacking. Aircrack-ng is the biggest and powerful tool to hack your Wi-Fi network. Okay. And with the help of this tool, you can crack WPA, WEP, WPA2 security easily. Okay. And another tool like Kismet something, a wireless network detector and sniffer. Okay. So this tool will also help you to find the vulnerability and help to hack any Wi-Fi network. Then web penetration testing के लिए there is Burp Shoot. Definitely there are these all tools available in our machine. Okay, you can type aircrack-ng. So this is the simple tool to hack Wi-Fi network. And one more thing like Metaxploit are available. This framework will help you to deploy any payload on any target machine, and you can exploit on behalf of Metaxploit framework, है ना, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। And Burp Shoot help to hack the website, and it is available for hacking target machine, bypassing OTP, and altering data, and different types of tasks you can perform through Burp Shoot. Okay, so this is the simple tool which you can use as per need and requirement. I'll tell that how to set up this tool. Okay, but this is the biggest tool. With the help of this, you can find the vulnerability, you can find the bug in particular target. Okay, तो बग बाउंटी वाले और ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत एडवांस टूल है बर्ब शूट, ऑलरेडी अवेलेबल इन काली लिनक्स। नो नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंस्टॉल दी बर्ब शूट इन योर काली लिनक्स मशीन। OSAP password cracking, there are John the Reaper. I'll tell that how to use John the Reaper to hack the to hack the password of any file. Okay, so for example अगर आपके पास zip फाइल का पासवर्ड और ये सब है, easily you can find out with the help of John the Reaper tool. Okay, then ethical hacking tools, network scanner, vulnerability assessment tool, exploitation framework, wireless hacking, ये सारे टास्क के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं।
काली लिनक्स में कैसे आपको बेसिक 3-4 घंटे का वीडियो सेशन है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसको आप देखकर अपना पढ़ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, लाइक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मुझे अपडेट कर लेना है वर्चुअल मशीन में, काली लिनक्स वगैरह को रन कर लेना है, विंडोज 10 11 की एक मशीन होनी चाहिए, बस इतना हमारे पास होना चाहिए बेसिक काली लिनक्स वगैरह पर। फिर हमें ये सारी प्रैक्टिस करना है। सारे टूल्स हमारे सिस्टम पर अवेलेबल होते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो हम लोग इसको अगले पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर समझ लेंगे और सीख लेंगे, या जैसे जैसे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें जाकर अपना काम कर लेंगे। So this is the introduction part of the things. Now without networking it is not possible to hack any target or to get the detail about any target. So it is mandatory. And in the next point we will discuss about these all things. Okay. Now we are going to learn the depth part of network fundamental for hackers. Okay. We are going to learn the networking for hacking field. Okay.